অনারেবল চেয়ারম্যান স্যার, বাংলার মাটি আমাদের শিখিয়েছে নারীর সম্মান কি। রাজা রামমোহন রয় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধেই লড়াই করে নারীর জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ চালু করে সমাজকে মানবিকতার পথ দেখিয়েছিলেন। অথচ এনাদের মধ্যে কেউ একজন রাজা রামমোহন রায়কে ব্রিটিশের দালাল বলেছিলেন, আর কলকাতায় এনারাই বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিলেন। আশা করি আপনাদের সেটা মনে আছে। কেউ তো আবার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিম বাবু না বলে বঙ্কিম দা বলে সম্বোধিত করেছিলেন। কিন্তু আমরা আমাদের মহাপুরুষদের ঐতিহ্য বহন করে চলেছি, নারীর অধিকার রক্ষার ঐতিহ্য, সংগ্রামের ঐতিহ্য। আজ এই সংসদে আমরা এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি। আজকের লড়াই শুধু একটি বিল নিয়ে নয়, আজকের লড়াই ন্যায় বিচার বনাম প্রতারণা, অধিকার বনাম রাজনৈতিক নাটক। আমরা নারীদের সংরক্ষণ চাই স্যার, এটা কোনো দয়া নয়, এটা তাদের অধিকার। আর এই অধিকার এখনই চাই, আজই চাই, কোনো শর্ত ছাড়াই চাই। বিকজ দ্য উইমেন অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ ওয়েটেড লং এনাফ স্যার, অ্যান্ড এনাফ ইজ এনাফ। তাই আমি এই সরকারের কাছে সরাসরি প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা বলছেন নারী ক্ষমতায়ন অর্থাৎ উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, কিন্তু বাস্তবে আপনারা কি করছেন? বিল আনছেন নির্বাচনের ঠিক আগে, ভোটের রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন। যদি আমরা প্রশ্ন তুলি তাহলে আমাদের নারী বিরোধী বলা হবে। এই হচ্ছে আপনাদের কৌশল, আপনাদের স্ট্র্যাটেজি। আমরা অর্থাৎ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস আজ এই মহতী সদনে পরিষ্কার করে জানাতে চাই, নারী সংরক্ষণ আমরা সমর্থন করি, কিন্তু প্রতারণা অর্থাৎ ডিসেপশন আমরা সমর্থন করি না। এখন আসি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয়, ডিলিমিটেশন। ডিলিমিটেশন মানে কি? ডিলিমিটেশন মানে দেশ আর রাজ্যকে ভাগ করে দেয়া। এই সরকার নারীদের সংরক্ষণকে চালাকি করে জুড়ে দিয়েছে ডিলিমিটেশনের সঙ্গে। কেন? আরও ভয়ঙ্কর হলো, নারী সংরক্ষণ কার্যকর হবে ভবিষ্যতে ডিলিমিটেশনের পরে, মানে আজ নয়, কাল নয়, কখন হবে আমরা কেউ জানি না। এটাকে তাহলে আপনারা কি বলবেন? এটা কি সংরক্ষণ না প্রতারণা? ডিলিমিটেশনকে ব্যবহার করে আপনারা কি করতে চাইছেন? আমি তাহলে বলি, 2011 সালে জনগণনা ধরে সীমানা বদলে রাজনৈতিক লাভ তুলতে আপনারা চান। সংখ্যালঘু, এসটি এসসি বিরোধী সবার কণ্ঠস্বর আপনারা দুর্বল করার চেষ্টা করছেন। সবচেয়ে বড় সত্যটা হলো, আপনারা নারী সংরক্ষণ বিলকে শিখণ্ডী বানিয়েছেন ডিলিমিটেশনের আসল উদ্দেশ্য লুকানোর জন্য। নারীদের সামনে রেখে পেছনে আড়ালে অন্য রাজনীতির খেলা আপনারা খেলছেন, সেই খেলায় আপনারা মেতে উঠেছেন। তাই এই বিল নারীর ক্ষমতায়নের আড়ালে গণতন্ত্রকে দুর্বল করার একটি হাতিয়ার। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিলে কি হয়। এসআইআর প্রক্রিয়ায় শুধু বাংলার 200-রও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, মানুষ হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়েছে, এখনও অনেকের নাম আটকে আছে নানান কারণে। বাংলাতে মানুষ ক্ষিপ্ত, কারণ ভারতের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তারা ভোট দিতে পারবে না। महोदय, हमारी संस्कृति तो वो है जो अर्धनारीश्वर को पूजती है। भारत की संस्कृति वो है जहां पर लैंगिक समानता एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम तो वो है जो कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक है। हमारे यहाँ तो शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना करी जाती है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, महादेव का त्रिशूल और ब्रह्मा जी का कमंडल, यानी तीनों त्रिदेवों की शक्ति अगर समाहित करना हो तो वो केवल और केवल माँ दुर्गा ही कर सकती है। ये स्तर है नारियों का हमारी संस्कृति में। लेकिन कहीं ना कहीं आक्रांता आए और हमारी संस्कृति का अपभ्रंश हुआ। जहां
सम्मान हमारी संस्कृति है, वहीं महोदया नारियों का सशक्तिकरण करना हमारा कर्तव्य है। आज यहां पर टीएमसी की एक संसद सदस्य ने कहा इक्वालिटी इज बाय बर्थ। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि पुरुष और स्त्री को एक समान तो ईश्वर ने ही बनाकर भेजा है। पर उन्होंने यह भी कहा कि इक्वालिटी कैन नॉट बी गिवन बाय पॉलिटिकल एक्सरसाइज। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। महिला आरक्षण की आवश्यकता क्या है, यह मैं कुछ आंकड़े देकर इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगी। आज महिलाएं पूरे के पूरे विश्व में, खास करके महिलाएं जो भारत की बेटियां हैं, वो अपना परचम लहरा रही हैं। वो चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे लॉ हो, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अगर हम 2024 का इलेक्शन देखें तो वहां पर महिला वोटर की तादाद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष के उन साथियों से जो आज इस संशोधन का समर्थन नहीं कर रहे, क्या बात आप महिलाओं की भूमिका केवल मतदाता तक ही रखना चाहते हैं क्या? आज इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 13.6% है। अगर हम विधानसभा में जाएं तो वहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। और अगर हम ग्लोबल परसेंटेजेस देखें महोदया, तो वहां पर 27.6% है। मैं तो धन्यवाद करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और इस सदन में उन सभी राजनीतिक दलों का जिन्होंने 27 बरस पुराना विलंब जो था, डिले थी, उसको हर कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सितंबर 2023 को एक हकीकत बनाया, उसको पारित करा। और महोदया मुझे अचंबा है कि मेरे विपक्ष के साथी जिन्होंने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित तो कर दिया, उसे कानून तो बना दिया, आज वो इसे 2029 में लागू करने के लिए अपना समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्यों अपने हाथ खींच रहे हैं? कल मैंने एक वीडियो देखी जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जारी करी थी। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहती हूं, ये जो संशोधन आया है, ये वचन पूर्ति के लिए आया है। इस पूरे सदन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, इस देश की मातृ शक्ति से ये वचन करा था कि हम इस कानून को 2029 से ही लागू कर देंगे। मैं पूछना चाहती हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष से, वो कहते हैं दिस इज अ पावर ग्रैबिंग मूव। मैंने याद कराना चाहती हूँ, पावर ग्रैब का मुद्दा नहीं, ये पावर बैलेंस का विषय है। ये हक चोरी का विषय नहीं, हक के हिसाब का विषय है। और महोदया, बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि इस सदन को, इस देश की मातृशक्ति को उसके हक का हिसाब देना पड़ेगा। दल और राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर, विचारधारा की भिन्नता से ऊपर उठकर, इस सदन की जिम्मेदारी है कि हम इस संशोधन को सर्वसम्मति से पारित करें। विपक्ष के कुछ साथियों ने कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म्स रखे हैं, कुछ ऐसे कटाक्ष रखे हैं, जिन्हें मैं यहां बहुत विनम्रता से उनका जवाब देना चाहूंगी, उन संशयों का। और ये आग्रह करना चाहूंगी कि आपके संशय डिबेट तक सीमित रहे, वोट तक उन पर उनकी परछाई मत पड़ने दीजिएगा।